dear learners, welcome back to Anna's English Academy. This is Sonia. In today's video, let's discuss or continue our series where I talked about PYQs from British literature. So in my previous video, I have covered Elizabethan age of British literature. In today's video, we will discuss PYQs from the age Puritan and Restoration age of British literature, which is most important for exam point of view, and to look up all the PYQs, you see yourself complete clarity towards your upcoming UGC NET English Literature examination. Now let's start today's video. So guys, you see this is the first question of today's video. December 2012 में आपसे put हुआ है in UGC NET English Literature exam. Matching question है, you see here. यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट 1 to 2. सो फर्स्ट लिस्ट में आप देख रहे हैं एल एलिग्रो एंड एल पेंसरोसो, Lycidas, Camus on his blindness as well Areopagitica. On the other hand, pastoral elegy, masque, sonnets, prostract, companion poems in octosyllabic couplets. So you have to match. Now let's talk about step by step each option you see in this question. So first we have El Allegro and El Penseroso. तो मैं आपको बता दूँ 1631. The year of publication, it's a pastoral lyric poem which was written by John Milton, and of course companion poem it consider. Okay, companion poem है Il Penseroso का. Which one? आपका एलिग्रो. जो एल एलिग्रो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मीनिंग ही है चीयरफुल मैन, और इसी का ऑपोजिट जो है आपका पेंसरोसो, तो उसमें आप देखेंगे द थॉटफुल सेड मैन को, बेसिकली जो एक सैडनेस होता है उसको यहाँ पे टारगेट किया है. सो बोथ द पोएम्स आर कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर एंड कंपेनियन पोएम कंसीडर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन मेनी टाइम. यू सी योर एग्जामिनेशन में रिपीटेड फॉर्म में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ जॉन मिल्टन आस्क्ड. यहाँ पे उन्होंने सिंपली पूछा है व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो यू सी इट्स कंपेनियन पोएम्स इन octosyllabic couplets. Now let's move on. Next one, Lycidas. So you understand about Lycidas. This is important one which again repeated in examination of your, if you see 225 examination जो आपके इसी साल last to last examination हुए literature के, तो kind of works right by John Milton. You see repeated form में पूछे गए. Again you see this is pastoral elegy Lycidas that was published 1637. And it was written to mourn मिल्टन्स बेस्ट फ्रेंड एडवर्ड किंग, जिनकी डेथ हो जाती है जब वो ड्रॉन हो जाते हैं एट सी में. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने शेफर्ड इमेजरी को यूज़ किया है एंड इट्स अ एलिजी. तो आपका लेसिडास कहाँ पे इट गोज टूवर्ड्स द पेस्टोरल एलिजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमर्स. ओके, नाउ दिस इज अगेन बाय जॉन मिल्टन एंड इट वॉज पब्लिश 1634. राइट, एंड इट इज़ अ मास्क. मास्क मतलब आप मान के चलिए जिसमें आपको ड्रामा, डांस, म्यूजिक, right, for entertainment you see all the things in a mixed way. That's a mask. Okay, it was written for the Earl of, जो ब्रिजवाटर हैं उनके जो चिल्ड्रन है बेसिकली उनके लिए लिखा गया है ये, जिसमें आप देखेंगे एक लेडी होती है, उसको किस तरीके से टेम्प कर दिया जाता है कॉमर्स के थ्रू. जो कॉमर्स है यहाँ पर वो बेसिकली सिंबल है सेंचुअल प्लेजर का. राइट, सो ओवरऑल दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट एंड इट्स अ कैंपस, इट्स अ मास्क. नाउ जो सी आपका ऑप्शन है इट्स गोज टूवर्ड्स द सेकेंड नंबर, मास्क. अभी नेक्स्ट वी हैव ऑन हिज ब्लाइंडनेस. On his blindness. Now this is 1652 again by John Milton. It is a patriarchal sonnet. ये एक sonnet है. It was written after जब मिल्टन जो थे आपके जॉन मिल्टन went completely blind in his life. ठीक है, तो बेसिकली ड्यूरिंग दिस टाइम ही wrote this patriarchal sonnet. So it's sonnet, you see this goes towards 3 option. And next we have Areopagitica. This was published 1644. Right, it's written against censorship, licensing of books. राइट, बेसिकली उसके अगेंस्ट ये आपका इनका जो जॉन मिल्टन का इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको एक प्रॉस ट्रैक्ट भी बोलते हैं और पॉलिटिकल पैम्फलेट भी इट इज़ कॉल्ड. मेरी लास्ट वीडियो में जहाँ मैं आपको मेजर वर्क्स डिस्कस कर रही थी, इन दैट वीडियो ऑफ माइन आई हैव डिस्कस्ड जॉन मिल्टन के जो जो वर्क्स आपको स्टडी करने. ओवरऑल आई हैव जस्ट मेंशन देयर all the works in this question you see, and we have discussed there
in a detailed manner with facts and every important information that you need to sustain in your mind for your upcoming UGC NET English literature examination perspective. So see guys, Aeropagitica as I told about कि मतलब ये जो इनका बेसिकली प्रोस्ट्रैक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मैच इट विद द प्रोस्ट्रैक्ट एंड यू सी इट्स नॉट अ स्पीच बट रिटन लाइक अ स्पीच. ये एक स्पीच नहीं होती लेकिन इसको स्पीच के टाइप में लिखा जाता है. और यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं डिफेंस किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, प्रेस को लेके एंड ऑफ कोर्स ग्रो करना नॉलेज को थ्रू ओपन डिस्कशन, नॉट सेंसरशिप. This is the core idea I have discussed, or we have actually discussed complete this question. Now let's move on. Next one, you see, next question we have: the Puritan shut down all theaters in England in. So guys, answer we have 1642. Now why did they close the theaters? This is really you need to understand. Now let me complain. बिकॉज द प्यूरिटन्स बिलीव दैट, क्योंकि जो प्यूरिटन थे उनका बिलीव ये था जो थिएटर्स थे वो कहीं ना कहीं इमोरल थे और सिंफुल थे, राइट क्योंकि जो ड्रामाज थे ड्यूरिंग दैट पीरियड वो इनकरेज कर रहे थे करप्शन को इन द सोसाइटी, राइट. और इंग्लैंड को चाहिए था रिलीजियस डिसिप्लिन. दे डोंट वांट एनी एंटरटेनमेंट, दे वांट रिलीजियस डिसिप्लिन. सो फॉर दिस रीजन जो आपका बेसिकली थिएटर्स थे, राइट उनको शट डाउन कर दिया गया 1642 में बाय Puritans. Hope you understand here. Now let's move on the next question. Unless weariness be used as good almost kill a man as kill a good book. Who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but who destroys a good book kills reason itself, kills the image of God as it were in the eye. Many a man lives a burden to the earth, but a good book is the precious life blood of a master spirit. Where is the passage from? So देखिए ये जो बेसिकली पैसेज है इसको अगर आप एक बार और से रीडिंग देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग अगर आप अपने आप से देंगे, यू सी दिस केम फ्रॉम मिल्टन्स एरोपैजिटिका, जहाँ पर बेसिकली इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस के बारे में बात किया था. होप यू अंडरस्टैंड हियर. वी हैव डिस्कस्ड, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस करा है. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपेनियन पोयम. सो यहाँ पर आप देखेंगे कंपेनियन पोयम अभी हम लोगों ने जॉन मिल्टन का डिस्कस किया, एल एलिग्रो एंड एल पेंसरोसो 1631. इस तरीके से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट में. अभी पीछे हमने मैचिंग्स देखा, नाउ दे फ्रेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. और ये मैं 2/12 के आपके दिसंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं का रिपीटेशन दिखा रही हूँ. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट मैच दी फॉलोइंग. अभी यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड आपको दे रखी है. एरोपैजिटिका, लिवियाथन, Alexander's Feast, The War of the World. अभी अच्छे वर्क्स हैं टू एक्सप्लेन इट और टू नो द फैक्ट्स अबाउट दीज वर्क, रियली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव. ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे फैशन, कॉर्टशिप, सिडक्शन, लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, एब्सोल्यूट सॉवर्निटी, द पावर ऑफ म्यूजिक. सो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल दिया है वन साइड आपका जो बेसिकली वर्क है, एंड ऑन दी अदर साइड उसका कोर आइडिया दिया है वर्क का, आपको उसको मैच करना है. सो गाइज एरोपैजिटिका यू सी थर्ड टाइम आपका रिपीट हो रहा है जॉन मिल्टन का 1644, राइट. तो बेसिकली ये किस बेस्ड कोर आइडिया पर है, तो ये एक प्रोस्ट्रैक्ट है. अभी पीछे हम लोगों ने स्टडी किया, पॉलिटिकल पैम्फलेट है और ये लिखा गया था अगेंस्ट द सेंसरशिप ऑफ लाइसेंसिंग, जहाँ पे 1643 में लाइसेंसिंग ऑर्डर बेसिकली ऑरिजिनेट किया था, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने ये वर्क दिया था वेरी नेक्स्ट ईयर 1644 में जॉन मिल्टन ने, जहाँ पर इन्होंने बेसिकली इसको अगेंस्ट किया था और इन्होंने फ्रीडम के बारे में बात किया था. इन्होंने कहीं ना कहीं आर्गुमेंटेशन दिया था फ्रीडम फॉर द प्रेस के लिए. ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको पीछे डिस्कस कर दिया है. अभी देखिए यहाँ ऑप्शंस में द लिबर्टी फॉर अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, तो बेसिकली इट गोज टूवर्ड्स ऑप्शन नंबर सेकेंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्क, लिवियाथन. दिस इज इंपॉर्टेंट, थॉमस होब्स का 1651 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. नाउ इट्स ऑल्सो पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल ट्रिटाइज है, जिसमें आप देखेंगे कि डिस्क्राइब किया गया है द स्टेट ऑफ नेचर, मतलब क्या होना चाहिए, सॉलिटरी, पुअर,
ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मतलब प्रिवेंट किया गया है डिसऑर्डर को, पीपल को सरेंडर फ्रीडम टू जस्ट sovereign for security and peace. तो दिस इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर फैशन कॉर्टशिप एंड सिडक्शन। नो नो, इसका जो आपका जाएगा लिव्याथन, इफ एम नॉट रॉन्ग, एब्सोल्यूट सॉवर्निटी। तो आपका लिव्याथन जो है गोज टुवर्ड्स एब्सोल्यूट सॉवर्निटी। ओके, क्योंकि इस वर्क में आप देखेंगे इसको सिविल वार के ड्यूरिंग लिखा गया था लिव्याथन को, और यहाँ पर ना सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट थियोरी है स्टैब्लिश किया गया था, मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी को, एंड दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड सॉवर्निटी की यहाँ पे बात हो रही है, फ्रीडम टू अ सॉवर्न फॉर सिक्योरिटी एंड पीस के लिए। तो ऑफ कोर्स दिस गोज टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑप्शन 3। एंड नेक्स्ट वी हैव अलेक्जेंडर्स द फीस्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट, अलेक्जेंडर्स फीस्ट, और इसको आप बोल सकते हैं द पावर फोर ऑफ म्यूजिक, अनदर टाइटल है इसका। इट वॉज रिटन बाय जॉन ब्रैडन। ठीक है, ये जॉन ब्रैडन का यहाँ पे मेंशन भी है, 1697 the year of publication, and it is the power of music. This is the another title of it. You can now match in easiest manner. Abhi now let's talk about next one, the way of the world. ये जो फोर्थ वन है, दिस इज बाय विलियम कॉन्ग्रीव, 1700 में आया है। और आप ये सभी जो मैं 4 वर्क्स यहाँ मैचिंग क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, एरोपेजिटिका, लिवियाथन, अलेक्जेंडर्स फीस्ट, एज वेल द वे ऑफ द वर्ल्ड, कई बार एग्जाम में आपके मैचिंग्स क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, सेम एज इट इज आपको रिपीटेशन मिलता है एग्जामिनेशन में। सो यू प्लीज कीप इन योर माइंड दीज 4 वर्क। ओके, नाउ ये जो विलियम कॉन्ग्रिव का इंपॉर्टेंट वर्क है, इट्स अन रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है, एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज कंसिडर की जाती है रेस्टोरेशन एज की, द वे ऑफ द वर्ल्ड आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस हियर। एंड दिस इज फैशन, कर्टशिप एंड सिडक्शन को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है। ओके, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो मिराबेल है, जो मिला माउंट है, जो लेडी है, मतलब दे आर मेजर कैरेक्टर। जो बेस्ड आइडिया आप इसमें देखेंगे, लव मैरिज सोसाइटी किस तरीके से शेप करती है विट को, तो सोशल मैनर्स की यहाँ पे बात हुई है। होप यू अंडरस्टैंड हियर एंड वी हैव मैच्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्यूरिटन्स under the rule of Oliver Cromwell and his Commonwealth shut down all English theatres on religious and moral grounds. So this is the year we have 1649 to 1660. Next question, which among the following is a place through which John Bunyan's Christian does not pass? वो कौन सा बेसिकली प्लेस था जहाँ से वो पास नहीं हो पाया था, जो क्रिश्चियन था। ठीक है, तो वी हैव माउंट हेलिकन। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इट केम फ्रॉम द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो आपका जॉन बनियन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसके 2 पार्ट्स में पब्लिश हो रहा है 1678। और मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सभी वर्क डिस्कस किए हैं मेजर लिस्ट में, और आज हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपको मेजर क्लैरिटी देने वाला है टुवर्ड्स योर प्रेपरेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, जून 2012 में आपसे पूछा गया यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन में, इन कैंटो 17 ऑफ द इन्फर्नो द मॉन्स्टर ग्रेन रिप्रेजेंट। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्राउड। तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली इन्फर्नो जो वर्क है, इट्स बाय दांते। ठीक है, दांते का इंपॉर्टेंट वर्क है, और इसमें जो मॉन्स्टर है, राइट, जो ग्रियन मॉन्स्टर है, उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, फ्रॉड के थ्रू। वाई? बिकॉज आप देखेंगे हिज फेस, जो उसका फेस था, इज ह्यूमन एंड काइंड, मतलब कि ट्रस्ट वर्दी वो लगता था, और उसका जो बॉडी था इज दैट ऑफ अ मॉन्स्ट्रस सर्पेंट, मतलब कि हिडन इविल उसकी बॉडी में छिपा था। तो आप देखेंगे वो कैसा था, एक फ्रॉड था। होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो कैंटो का, नॉट कैंटो एक्चुअली, जो डांते हैं उनका जो इन्फर्नो है, इट्स द डिवाइन कॉमेडी। ये इनका एक डिवाइन कॉमेडी है, जिसे इन्होंने अराउंड 308 टू 21 लिखा था। और इनका जो कैंटो 17 बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट इन दिस क्वेश्चन, तो इट्स अ काइंड ऑफ एपिक पोयम, एलिगोरिकल जर्नी इसमें दिखाई गई है, रिलीजियस विजन को कहीं ना कहीं टारगेट किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जो दिसंबर आपसे 211 में पूछा है, सर फॉपलिंग इज अ कैरेक्टर इन। अभी देखिए कैरेक्टर बेस्ड है, तो सर फॉपलिंग जो कैरेक्टर है वो एथर्ज का द मैन ऑफ मैड।
सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो वर्क है द मैन ऑफ मॉड, नॉट बैड एक्चुअली, 1676 में आया है। जॉर्ज एथर्ज ने इसको लिखा है, यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। और ये रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। और इस पर्टिकुलर वर्क को अनदर टाइटल भी है जो हम बोलते हैं सर पॉपलिंग फ्लटर, सर पॉपलिंग फ्लटर। ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे जो फ्लटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया फॉपलिंग फ्लटर अनदर टाइटल ऑल्सो, तो सर फॉपलिंग आपके यही इसी पर्टिकुलर वर्क से हैं। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिगी, तो इनमें से एलिगरी कौन सा है इनका? लेसिडास। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, लेट सी discoverers to new worlds have gone, let maps to other worlds on worlds have shone, let's possess one world each hath one and is one. Now this came from John Donne. सो बेसिकली फ्रेंड्स इट एसोसिएटेड विद जॉन डन, बट उनका जो एक पोएम आया था द गुड मॉरो करके, द लाइन्स केम फ्रॉम देयर, जो गुड मॉरो की लाइन्स है। तो यहाँ पे जो डन है ना, उन्होंने मतलब बोला था, एक्सप्लोर किया था, मेड ट्रैवल अक्रॉस सीज, मतलब कि जो बेसिकली ट्रैवल कर रहे थे अक्रॉस सीज एंड डिस्कवर न्यू वर्ल्ड्स। ठीक है, और ये बोलते हैं कि मैप्स में शो मैनी न्यू प्लेसेस बट लवर्स डोंट नीड टू ट्रैवल। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड ऑफ ट्रू लव इज ग्रेटर दैन एनी फिजिकल वर्ल्ड आउटसाइड। इतना बड़ा स्टेटमेंट, मेटाफिजिकल स्टेटमेंट ही गिवन हियर इन दिस इंपॉर्टेंट द गुड मोरो। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले जून 2011 में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुआ है नेट एग्जामिनेशन में, मैक फ्लैक्नॉय इज एन अटैक ऑन ड्रैडन्स लिटरेरी राइवल। सो देखिए आंसर यहाँ पे बहुत सिंपल है, थॉमस शैडवेल। नाउ लेट्स जस्ट सजेस्ट सम फैक्ट्स अबाउट मैक फ्लैक्नॉय। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जॉन ड्रैडन का 1682 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन मोक एपिक है, सटायर है। ठीक है, मैक फ्लैक्नॉय जिसे अ सटायर अपॉन द ट्रू बिलो प्रोटेस्टेंट पोएट टीएसबी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट बता दूं कि ये जो ड्रैडन ने पोएम लिखा था, इसमें इन्होंने अटैक किया था थॉमस शेडवेल को, जो बेसिकली इनके राइवल पोएट थे एंड ड्रामेटिस्ट भी थे। तो यहाँ पर ये मॉक कर रहे थे शेडवेल्स की डलनेस एंड उसको कॉल कर रहे थे कि ही इज ट्रू स्टूपिडिटी, राइट। सो दिस इज type of mock that is most important for during that time when आपके Dryden was active. Okay, so let's discuss next question. Andrew Marvell's An Horatian Ode upon Cromwell's return from Ireland was written in, this is the direct question and the answer we have 1650. Next question, Two Daffodils is a poem written by, so Daffodils, this is the poem which was written by William Wordsworth, important exam point of view से, and it was published 1807 the year of publication, and 2 volumes में ये poem आया था, और lyrical poem है, romantic nature poem है, and of course you see 4 stanzas जिसमें 6 lines each आपको देखने मिल जाएगा, and iambic tetrameter use हुआ है इस poem में। We have discussed information about it. Now let's go ahead. Check the question. December 2010 में जो आपसे पूछा गया, the English satirist who used the sharp edge of praise to attack his victims was, of course we have John Dryden, right? This is the simple question. अभी next question we have. Now the question we have, who among the following is not a restoration playwright? अभी restoration playwright कौन सा नहीं है? William Congreve, William Wycherley, George Athers and Ben Jonson. So guys, the answer to this question we have Ben Jonson. You see William Congreve, ये आपके रेस्टोरेशन कॉमेडियन हैं, कॉमेडीज इन्होंने दी हैं। विलियम वाइचरले ऑल्सो एसोसिएटेड विद रेस्टोरेशन कॉमेडी, एंड जॉर्ज एथर्ज also associated restoration comedy. But if I talk about Ben Jonson, he belongs to the Jacobean and late Elizabethan period, यानी कि अर्ली 17th century से इनका एसोसिएशन है आपके बैन जॉनसन का, एंड हिज फेमस वर्क लाइक वॉल्पोने, एल्केमिस्टिक, वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो जहाँ मैं मेजर वर्क आपके साथ डिस्कस कर रही थी। सी गाइज, दिस इज द इम्पॉर्टेंस टू अंडरस्टैंड द ईयर
एज वाइज ऑफ ईच की फिगर यू प्रैक्टिस फॉर एग्जाम। और इसी को टारगेट करके मैं अपना कंप्लीट लिस्ट आप लोगों के साथ नाउ डेज अपार्ट फ्रॉम दिस पीवाईक्यूज अनदर सीरीज इज गोइंग ऑन माई चैनल ऑन डेली बेसिस। येस्टरडे मैंने वीडियो अपलोड किया है जहां मैं मेजर आपके साथ की फिगर्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर एज वेल उनकी मेजर वर्क डिस्कस कर रही हूँ। एंड वी हैव डिस्कस अलॉन्ग विद उनका ईयर, उनका टाइमलाइन एज वेल फैक्ट्स अबाउट दियर लाइफ एंड दियर करियर एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द लिटरेचर एज वेल वो कौन से मेजर बॉक्स में कितना आपको फैक्ट्स प्रिपेयर करना है टू द पॉइंट कंटेंट के साथ। इफ़ यू विलिंग और नॉट वॉच येट, गो एंड वॉच वीडियो, it really help you a lot in your further examination. Now let's quickly move on. Next question. See, the restoration comedy The Double Dealer was written by, so basically friends, विलियम कॉन्ग्रीव। द डबल डीलर रेस्टोरेशन आपका कॉमेडी है एंड ऑफ कोर्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। इसमें आप बोल सकते हो इट्स एन सटायरिकल ड्रामा जो बेसिकली फिल्ड है विद बिट्रेयल, डिसेप्शन एंड हाइपोक्रेसी से। तो ये जो प्ले है इनका लाइक कॉन्ग्रीव का, तो इसमें आप देखेंगे जो स्कीमिंग रहती है ना एरिस्टोक्रेट्स की, तो उसको कहीं ना कहीं शो किया है इस पर्टिकुलर अपने प्ले में इन्होंने। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मास्कवेल, मेलाफोर्ड एंड सिंथिया मेजर कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बनते हैं। अभी लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। सी 2010 में आपसे क्वेश्चन बना है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कैवेलियर पोइट। सो फर्स्ट नो अबाउट कैवेलियर पोइट्स। तो अर्ली 17th सेंचुरी में रीन ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट, अर्ली 17th सेंचुरी में जब आपका रीन था चार्ल्स द फर्स्ट का, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड तो अपोज्ड करने के लिए प्यूरिटन्स को, जो बेसिकली सपोर्टर आए द रॉयलिस्टिक किंग साइड से लेकर, उनको हम बोलते हैं कैवेलियर पोइट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोइट्स हैं एक ग्रुप है कर्टली पोइट्स का जो सेलिब्रेट करते हैं ऑनर, लॉयल्टी, शिवलरी, लव, ब्यूटी, राइट, कार्प डीम जिसको सीज द डे बोलते हैं। और इसमें जो आपके मेजर की फिगर्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, कई बार मैं बता चुकी हूँ, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरियो, सर जॉन सकलिंग, सो एंड सो फोर्थ। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें मैं आपको बताऊँ तो जॉन सकलिंग द आंसर टू दैट क्वेश्चन, क्योंकि जॉन सकलिंग को अपनी विट एंड प्लेफुल टोन के लिए जाना जाता है और उनके जो फेमस वर्क थे एसोसिएटेड थे ऑफ कोर्स दिस पर्टिकुलर लिटरेरी मूवमेंट, अ बैलेड अपॉन अ वेडिंग, वाई सो पेल एंड वॉन फाउंड लवर। ठीक है, वैसे एग्जामिनेशन में इनके वर्क पूछे नहीं गए बट इवन दो आई डिस्कस विद यू ऑल, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द प्ले राइट following plays by William Wycherley is in part an adaptation of Molière's The Misanthrope? So answer we have The Plain Dealer. तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं द प्लेन डीलर, दिस इज बाय वाइचरले, वी हैव डिस्कस्ड और इट वाज पब्लिश्ड 1676, राइट। रेस्टोरेशन कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बेसिकली एग्जाम्पल है, सटायर है। और प्लेन डीलर जो है अडेप्टेशन है मॉलियर का जो फ्रेंच प्ले आया था ना 1666 में, राइट। 1666 में जो इनका मॉलियर का जो व्हाट वी हैव मिसैंथ्रोप, ठीक है, ये आया था 1666 में। तो इसका अडॉप्टेशन जो है आपका प्लेन डीलर है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। सी दिसंबर 2009 में आपसे क्वेश्चन पुट हुआ है, टेम्पल इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, किनकी वो पोएम्स थी जिसका कलेक्शन टेम्पल था। सो वी हैव द आंसर। सो बेसिकली फ्रेंड्स आंसर वी हैव जॉर्ज हर्बर्ट, राइट। 1633 पोस्टमसली जो इनका टेम्पल कलेक्शन था इट केम आउट, और ये डिवोशनल पोएट्री कलेक्शन था इनका बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड ऑफ कोर्स पार्ट है मेटाफिजिकल पोएट्री का, ठीक है। और इसका जो कंप्लीट टाइटल है सेक्रेड पोएम्स एंड प्राइवेट एजुकेशंस, ठीक है। इसको पर्सनल डिवोशनल स्टाइल में लिखा गया था, क्रिश्चियन फेथ, मोरल रिफ्लेक्शन इसमें दिखाया गया था एंड कॉम्बिनेशन इसमें इमोशनल इंटेंसिटी एज वेल इंटेलेक्चुअल कंट्रोल का देखने मिलेगा, ऑफ कोर्स टिपिकल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। सो हियर वी डिस्कस्ड ऑल इम्पॉर्टेंट। और इनका जो ये कलेक्शन है ना बीन्स पोएम कलेक्शन, तो इसमें आपको ईस्टर विंग, लव थर्ड, वर्च्यू, द अल्टर करके पोएम्स मिल जाएंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज एल एलिग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड। सो आंसर वी हैव इल पेंसरोसो,
The year I have mentioned 1631. Okay, now let's move ahead. June 2009, great wits are sure to madness near allied, and thin partitions to their bounds divide. The above lines appear in, ये जो lines हैं, it appeared. So basically friends, answer we have Mac Flecknoe. This was by John Braden. We have discussed, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है 1682 द पब्लिकेशन, और ड्रेडन ने यहाँ पे बेसिकली मॉक हीरोइक सटायर है ये, और कमेंट किया है ऑन द थिन लाइन बिटवीन जीनियस एंड फॉली, राइट। और इन्होंने एक मॉक शेडवेल्स की डलनेस को मॉक करके ये लाइंस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किए। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स मूव ऑन अहेड। तो देखो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने 22 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, दीज 22 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद ईयर जब आपसे पूछे गए हैं यूजीसी नेट में फ्रॉम प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज, अभी हम लोग फर्दर एज को मूव करते हैं इन ब्रिटिश लिटरेचर, एंड लेट्स चेक आउट द PYQs. So guys, here we are now. New classical and Augustan age of British literature. Let's check out or look up December 2012 में जो आपसे PYQ बना है from the age, like identify the work below that does not belong to the literature of the 18th century. तो अभी इन सभी वर्क्स में से आपको उस वर्क को बेसिकली पॉइंट आउट करना है जो डज नॉट बिलोंग नहीं करता लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी. सो गाइज, आपने देखा दिस इज द क्वेश्चन दैट चेक द नॉलेज ऑफ योर रिगार्डिंग लिटरेचर. अगर आपको किसी भी वर्क के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इवन दो यू ओनली नो अबाउट द एजेस ऑफ लिटरेचर, यू इजीली आंसर. सो आप देखेंगे एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपसे बैकन के वर्क डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग डिस्कस किया था, जो बेसिकली एसोसिएटेड है और पब्लिश हुआ था 1605 में. इट मीन्स इसका एसोसिएशन है 17th सेंचुरी अराउंड. ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे ये एक फिलोसफिकल प्रोस्टिटाइज था जिसमें इन्होंने एडवोकेट किया था साइंटिफिक मेथड ऑफ कॉज सिस्टमैटिक स्टडी को. तो ऑब्वियसली इट इज़ बिलोंग टू 17th सेंचुरी, और यहाँ पे उन्होंने यही पूछा है कि 18th सेंचुरी से डज नॉट बिलोंग. तो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर ए. अदरवाइज गुलीबर्स ट्रेवल, द स्पेक्टेटर, एन एपिस्टल ऑफ डॉक्टर अर्बतनट. अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो देखिए, गुलीवर ट्रेवल्स आपका जोनाथन स्विफ्ट का इंपॉर्टेंट वर्क है, एसोसिएटेड ऑफ कोर्स 18th सेंचुरी से, और एग्जैक्ट इसका जो ईयर है 1726. ये एक इनका सटायरिकल प्रॉस नॉवल है जिसमें इन्होंने ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव द स्पेक्टेकर, जो बेसिकली फ्रेंड्स जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, these both गाय का 18th सेंचुरी से एसोसिएटेड है पीरियोडिकल एसेज जर्नलिज्म बेसिकली, जहाँ पर इन्होंने मोरल इंस्ट्रक्शंस जो थे, सोशल ऑब्जर्वेशन, पोलाइट सोसाइटी को के प्रमोट किए थे अपने इन पीरियोडिकल एसेज में, राइट. तो इसका भी एसोसिएशन है 18th सेंचुरी. नाउ नेक्स्ट वी हैव एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनट. ये अलेक्जेंडर पॉप का है, इंपॉर्टेंट वर्क है, 18th सेंचुरी से एसोसिएशन है, और एग्जैक्ट ईयर जो है वो 1735 है, एंड इट इज़ सटायरिकल पोयम, एपिस्टल है बेसिकली, एंड जहाँ पे कंटेम्प्रेरी जो पोइट्स है उनको कहीं ना कहीं क्रिटिक किया है, एंड ऑफ कोर्स डिफेंड किया है पोइट्स की लिटरेरी पोजीशन को. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑगस्टन सटायर. सो हियर वी द आंसर ऑप्शन नंबर ए, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ईच ऑप्शन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट authoritative dictionary of English language. So guys, answer we have सैमुअल जॉनसन. तो मैं आपको बता दूं 1755, और ये जो इनका बेसिकली वर्क है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन. अगर आप रिसेंटली एग्जामिनेशन चेकआउट करेंगे, यू सी दिस पर्टिकुलर जो टाइटल है, बेसिकली जो वर्क है सैमुअल जॉनसन का 1755, बेसिकली आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन appeared in examination of your. तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने standardized spelling and meaning of English words suggest किए थे, जिसमें ही content 40,000 अराउंड आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, जिसमें definitions, examples of quotations, and of course it consider first major scholarly English dictionary, right? And this is the answer
of this question. Now the next question we have, the enlightenment was characterized by. अभी यहाँ पे उन्होंने सिंपली आपसे enlightenment एज के बारे में एक क्वेश्चन पुट किया है. नाउ आंसर इट अकॉर्डिंगली. सो फर्स्ट रीड ईच ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन, देन मूव टुवर्ड्स द आंसर. सो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं, इनलाइटनमेंट एज ऑफ रीजन बोला जाता है. लेट 17th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी एक्टिव था, एंड ऑफ कोर्स पीक इन द 18th सेंचुरी में देखा गया इन यूरोप एंड इंग्लैंड में. एंड ऑफ कोर्स इनलाइटनमेंट जो था इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट को कहीं ना कहीं एम्फेसाइज कर रहा था. रीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी ओवर ट्रेडिशन या फिर सुपरस्टिशंस आप बोल सकते हैं. साइंटिफिक इंक्वायरीज आ रही थी, एम्पिरिकल एविडेंस दिए जा रहे थे. एम्पिरिकल मतलब द स्टडी ऑफ साइंस, द नॉलेज ऑफ साइंस, राइट. और इंडिविजुअल लिबर्टी, प्रोग्रेस, ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था. अभी आप देख सकते हैं, अ बिलीव इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ रीजन एंड एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन. दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. अब आपने देखा यहाँ पे एजिस का भी एक अपना इंपॉर्टेंस होता है लिटरेचर में. इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ ईच योर एज, जो भी आप ब्रिटिश लिटरेचर में एज स्टडी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोमांटिक हो गया, विक्टोरियन हो गया, न्यू क्लासिकल एंड ऑफ कोर्स प्यूरिटन हो गया, जो बेसिकली ऑगस्टन हो गया. ये सभी ऐसी एजेस हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं. बट डिफरेंसेस इज दैट सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बट आंसर सिंगल वन नहीं होगा. अभी आपको मोर देन वन आंसर्स चूज करने होते हैं फ्रॉम द ऑप्शंस. दिस इज द डिफरेंस यू सी इन 225 एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट. अदरवाइज आपसे 2012 में ओनली सिंगल आंसर दे एक्सपेक्ट. ओके, अदरवाइज क्वेश्चन आपके सेम सर्कुलेट होते हैं. यू प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड इन 1709 with a motive to expose the false arts of life. बेसिकली 1709 में जो पीरियोडिकल्स स्टार्ट हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे? टू एक्सपोज करने के लिए जो फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ है, टू पुल द डिस्गाइज ऑफ कनिंग एंड ऑफ कोर्स वैनिटी एंड अफेक्शन, एंड टू रिकमेंड अ जनरल सिंप्लिसिटी इन आर ड्रेस, our discourse and our behavior. The founder of the periodicals wrote under the pseudonym of Isaac Bickerstaff. अब वो कौन सा बेसिकली उन्होंने पूछा है, फाउंडर है पीरियोडिकल का. सारी उन्होंने आपको कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सजेस्ट कर दिए क्वेश्चन में ऑलरेडी, एंड दे हैव हिंट यू कि वो कौन सा आपका बेसिकली फाउंडर है जिसने इस पीरियोडिकल को लिखा, एंड ऑफ कोर्स अंडर द pseudonym Isaac Bickerstaff. So basically friend, Jonathan Swift, I'm writing here Jonathan Swift, right, associated with this pseudonym. और जो आंसर यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है क्वेश्चन में जो पूछा है आपसे, इट इज़ एसोसिएटेड द टेटलर विच वॉज 1709 started. Okay, so we have discussed here. Now the next question, again matching question, you see, match the following: the battle of the books, the rape of the lock, Gray's Elegy and the Deserted Village. So on one side you see आपको सब major works के title present है. On the other side explanation or the core idea of each work. Now you have to match accordingly. So guys, if I talk about the first one, the Battle of the Books, it is by Jonathan Swift, which was published 1704. और ये इनका एक satirical prose है which is satirized the quarrel between ancient and modern writers. तो यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ पर आपको मेंशन है, quarrel between two families no, accumulation of wealth and consequences loss of human lives no, quarrel between ancient and modern authors. See this associated with option number second. Now the next we have the rape of the lock. This is Alexander Pope's मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक एपिक पोएम है जिसका फर्स्ट वर्जन आया था 1712 में, एंड द सेकेंड और रिवाइज्ड वर्जन एक्सपेंडेड फॉर्म आया था 1714 में. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिवियल मॉक क्या है, सोशल क्वेरल्स दिखाया गया है ऑफ हाई सोसाइटी बाय ट्रीटिंग दैम इन एपिक स्टाइल. तो नाउ यू गाइज कैन जस्ट एसोसिएटेड विद अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस गिवन हियर. सी हियर, accumulation of wealth and the consequences loss of human lives, quarrel between families and caused by. So answer we have, yes friends, the answer to this we have option number 4, quarrel between two families caused by Lord Peter. तो आपने देखा जो ये इनका बेसिकली इम्पॉर्टेंट आपके अलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉक है. इस पर्टिकुलर पोएम में आप देखेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, जहाँ पर आपको अराबेला मिल जाएंगी जिसका लॉक होता है उनके मतलब
हेयर का कट कर लिया जाता है लॉर्ड पीटर के थ्रू। सी यहाँ पर आपको कीवर्ड भी मेंशन है ऑलरेडी टू जस्ट फाइंड योर आंसर। तो विदाउट परमिशन जब वो ले लेता है और बेसिकली कोज बन जाता है सोशल क्वेरल बिटवीन दियर टू फैमिलीज। सो दिस इज द आंसर। अभी लेट्स टॉक अबाउट ग्रेज एलिजी। तो ग्रेज एलिजी की अगर मैं बात करूंगी, सी दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो एंड यू सी 1751 द ईयर व्हेन इट फर्स्ट पब्लिश। ये एक इनका पेस्टोरल रिफ्लेक्टिव लिरिक है जहाँ पर इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है डेथ, मोर्टैलिटी एंड लाइव्स ऑफ हम्बल रूरल फोक। तो इससे एसोसिएटेड आपको दिखेगा accumulation of wealth and the consequent loss of human lives and values. I think this is the answer. And let's discuss about the deserted village जो ओलिवर गोल्डस्मिथ का मोस्ट रिपीटेड वर्क है 1770 पब्लिकेशन। ये एक इनका पेस्टोरल है जहाँ पर लेमेंट किया गया है, ऑफ कोर्स डिक्लाइन किया गया है जो रूरल लाइफ होता है, जो एक गांव का लाइफ रहता है, विलेज लाइफ जो होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल विलेज ड्यू टू इकोनॉमिक चेंज। ठीक है, तो अभी ये जो है आपका ट्रिब्यूट टू रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी गाइज, यहाँ थोड़ा सा मेरा मिस हो गया। लाइक ग्रेज एलिजी जो है ये आपका ट्रिब्यूट है टू द रूड फॉर फादर्स ऑफ हैमलेट। वाई? बिकॉज आप देखेंगे जो ग्रे है उन्होंने ऑनर किया था जो कॉमन हम्बल पीपल थे जिन्हें बरी किया गया था चर्च यार्ड में, और किस तरीके से उनके जो रूड फॉर फादर्स थे रेफर कर रहे थे टू द अनएजुकेशन और अनएजुकेटेड जो सिंपल विलेजर्स थे, जो जिनकी मतलब जो ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग है। तो ये जो बेसिकली पोएम है इट्स काइंड ऑफ ट्रिब्यूट दियर लाइव्स एंड वर्च्यूज, शोइंग दैट इवन द हम्बल डेड डिजर्व मेमोरी एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है इट्स गोज टूवर्ड्स दिस। एंड जो आपका डेजर्टेड विलेज है दिस इज एसोसिएटेड अकम्युलेशन ऑफ वेल्थ एंड द कॉन्सिक्वेंसेज और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वैल्यूज़। क्योंकि आपने इसमें देखा ना डेजर्टेड विलेज में किस तरीके से मतलब जो आपके गोल्डस्मिथ हैं इन्होंने रिप्रेजेंट किया है द इम्पॉर्टेंस ऑफ विलेज, और किस तरीके से इकोनॉमिक चेंज के थ्रू स्मॉल विलेजेस जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो दिस गोज टूवर्ड्स इट। तो नाउ वी हैव क्लियर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर जून 2012 में आपसे पूछा गया है नेट में। इन द रैप ऑफ द लॉक पॉप रिपीटेडली कंपेयर्स बेलिंडा टू। रिपीटेडली जो पॉप है वो किससे कंपेयर कर रहे थे बेलिंडा को? टू। सो गाइस आंसर टू दिस क्वेश्चन द सन। व्हाई? बिकॉज इन द पोएम आप देखेंगे जो बेलिंडा की ब्यूटी थी उसको, उसका जो प्रेजेंस था उसको डिस्क्राइब किया गया था लाइक रेडिएंट एंड सेंट्रल जस्ट लाइक द सन। जैसे सन होता है ना, रेडिएंट करता है, सेंट्रल होता है, तो जस्ट लाइक इन सेम मैनर बेलिंडा की ब्यूटी को प्रेजेंट किया गया था। दैट्स वाई कंपेयर किया गया है पॉप के थ्रू बेलिंडा को द सन के साथ। ठीक है, उनका जो फेस था, उनका जो हेयर थे, उनका जो चार्म था, शाइन ओवर द डोमिनेटिंग द सीन, राइट, यू सी इन दिस पोएम। तो ऑब्वियसली द आंसर वी है द सन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल इज टू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द लैंड ऑफ द हॉनी हम्स। ठीक है, तो हॉनी हम्स जो थे वो इंटेलिजेंट थे, एनी हाउ रेशनल हॉर्सेस थे हु लिव्ड इन अ परफेक्टली ऑर्डर्ड इन सोसाइटी। तो बेसिकली जो लास्ट था गॉलिवर्स ट्रैवल का वो यहीं पर एंड होता है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द predominant tone and thrust of Jonathan Swift's A Modest Proposal are। So basically friends, A Modest Proposal जोनाथन स्विफ्ट का लिखा है, मेंशन है जोनाथन स्विफ्ट यहाँ पर 1729 में आपका पब्लिश हो रहा है। ये इनका एक सटायरिकल ऐसे है, आयरनी भी है, बेसिकली सोशल क्रिटिक भी है, इसको प्रॉस में लिखा गया है। तो अगर मैं इन सभी ऑप्शंस में चूज करूँ देन आंसर वी हैव आयरनी। अभी नेक्स्ट वी हैव entries in the diary of Samuel Pepys begins after। So guys to reach the answer to that question, तो बेसिकली आंसर इसका रेस्टोरेशन है, लेकिन मैं आपको डायरीज, पिप्स की डायरीज के बारे में बता दूं। सो बेसिकली सैमुअल पिप्स का जो पीरियड था वो 1662 1669 रहा, और 1 जनवरी 1660 को इन्होंने स्टार्ट किया था, बिगिन किया था बेसिकली। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे जो इन्होंने पूछा है
कि जो इवेंट्स है मतलब कि जो एंट्रीज है डायरी का बिगिन आफ्टर द रेस्टोरेशन. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग पैसेज आर द वेरी फर्स्ट लाइन्स ऑफ वेल नॉन वर्क्स मैच द लाइन्स विद द वर्क. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी. फर्स्ट वी हैव लेट्स गो, देन यू एंड आई, कॉल मी ईशामेल, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, he disappeared in the dead of winter, I wish either dash begot me. So guys, let's match them with the work. देखिए Moby Dick, call me Ishamel, this is famous line and many time have been asked. तो basically इसका association है option number 1 यानी कि Moby Dick से call me Ishamel. And next we have, I'm just going to discuss one by one with you all. तो Moby Dick जो है आपका हरमन मेलविल का है, जिसका ओपनिंग लाइन है ये द कॉल मी ईशामेल करके, मतलब फेमस ओपनिंग लाइन आप मान के चलिए. तो जहाँ पर बेसिकली मतलब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो नरेटर है ना, वो किस तरीके से फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है आपका लेट्स गो देन यू एंड आई, लेट्स गो देन यू एंड आई, ये जो लाइन है आपके T.S. एलियट का जो इम्पॉर्टेंट पोएम 1916 में पब्लिश हुआ था. इट्स द सॉन्ग, द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉग, उसका ये ओपनिंग लाइन है. एक मॉडर्निस्ट पोएम है आपकी. सी ऑप्शन नंबर 3. तो लेट्स गो देन यू एंड आई, दिस इज फ्रॉम द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रोफ्रॉग. अभी नेक्स्ट वी हैव व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, दिस केम फ्रॉम मैकबेथ. विलियम शेक्सपियर का जो मैकबेथ है वहाँ से बेसिकली ये लाइन है. एंड यू सी इट इज़ स्पोकन बाय जो 3 विचेस थी ना, एक्ट फर्स्ट में आपको देखने मिली थी. एंड उसके सीन फर्स्ट में जब वो प्लान करते हैं टू मीट आफ्टर द बैटल टू कन्फ्रंट मैकबेथ, तो दिस इज एग्जैक्टली द लाइन वेयर स्पोकन. ओके, अभी नेक्स्ट जो है ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर. तो ये जो बेसिकली है दिस इज फ्रॉम इन मेमरी, जो बेसिकली ऑफ W.B. येट्स, राइट, इस पर्टिकुलर वर्क से आया है. ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर्स 5th यानी कि, और इट वॉज रिटन बाय W.H. ऑर्डन. W.H. ऑर्डन ने इम्पॉर्टेंट ये बेसिकली जो पोएम लिखा था इन मेमरी ऑफ W.B. येट्स, जहाँ पर उन्होंने डेथ ऑफ द पोइट W.B. येट्स इन जनवरी में 1939 में उनका डेथ हो गया था, तो उसके बारे में ही जस्ट मॉर्न हिज पासिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द रोल ऑफ पोइट्री इन सोसाइटी. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी नेक्स्ट कौन सा हमारा बचा है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया, आई विश ईदर बिगॉट मी. ठीक है, तो ये आई गेस आपका ट्रिस्टम शेंडी से है, क्योंकि यही अभी यहाँ पर थोड़ा आपका बचा है जिसको हम लोगों ने कवर नहीं किया. तो इट्स लाइकली फ्रॉम आई थिंक विच वॉज आई थिंक रिटन बाय लॉरेंस टर्न, 18th सेंचुरी का है ना. तो येस, इट्स अ नॉवल जो आपके लॉरेंस टर्न ने दिया है, ट्रिस्टम शैंडी, जहाँ से ये लाइन आया है बेसिकली. तो हियर यू सी आपको कुछ ओपनिंग लाइंस, और मैं आपको बता दूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. दीज अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन इन अ रिपीटेड फॉर्म. आपको इन सभी को नोट डाउन करके अपने पास सिक्योर करके रखना है, सो यू गाइज कैन मेमोराइज और रिवाइज इट बिफोर योर एग्जामिनेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इरिश राइटर. अभी देखिए उन्होंने नेशनैलिटी से आपसे पूछा है. सो फ्रेंड्स, आंसर टू दिस क्वेश्चन नॉट इरिश राइटर पूछा है, तो थॉमस ग्रे द आंसर, क्योंकि थॉमस ग्रे जो है आपके इंग्लिश पोइट हैं जिन्होंने रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड दिया था, इंपॉर्टेंट वर्क. अदरवाइज ऑस्कर वाइल्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडमंड बर्क आपके इरिश नॉवलिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर एंड प्लेराइट में से एक है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द वेल नॉन पोएम टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, द वर्ड क्वाय मीन्स, क्वाय का मीन्स क्या था यहाँ पे, आई थिंक शाय. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट वी हैव जेरेमी कॉलियर, शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टैलिटी एंड प्रोफेंसनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज 1698 अटैक्ड. तो guys, it was attack on the coarseness and the ugliness of restoration theater. Okay, so guys, next we have again matching question. You see this is most important question. यहाँ से आपको 4 important topic clear होने वाले हैं. See, metaphysical poets, transactional poets, war poets, Georgian. So basically आपसे on the one side literary movements they ask, and on the other side आपसे key figures associated पूछे गए हैं. Simply you will have to just answer or match them. So guys, see,
मेटाफिजिकल पॉइंट्स आपका एसोसिएटेड है 17th सेंचुरी और यू कैन से जेकोबियन और कैरोलिन पीरियड से, ठीक है, जहाँ पर वो लोग कंसीट और विटी इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, ठीक है। अभी जो मेंबर्स हैं हमारे पास जॉन डन हो गए, जॉर्ज हर्बर्ट हो गए, एंड्रयू मार्वल, रिचर्ड क्रैशियो आर एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल पॉइंट्स। ऑन दी अदर साइड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कौन से राइटर्स का ग्रुप है जो एसोसिएटेड है, जॉन डन, एनी हाउ यू फाइंड, यस, I think first is goes towards the second, George Herbert, Henry Vaughan, Andrew Marvell और Abraham Coley and John Donne, right? अभी next we have transitional points जो बेसिकली एसोसिएटेड है आपके लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी, राइट, यानी कि बिटवीन मेटाफिजिकल और कैवेलियर एंड न्यू क्लासिकल ऑगस्टन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मिक्सचर कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं मेटाफिजिकल विट एंड अर्ली न्यू क्लासिकल रिफाइनमेंट का राइटिंग्स में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपके एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, जॉन मिल्टन, राइट, सर जॉन डैनम एंड एडवर्ड वॉकर करके आपको मेंबर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स चेक आउट कि जो मैंने अभी आपको सजेस्ट किए उनसे आपको एसोसिएटेड कौन से ग्रुप में देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर वी हैव, सो गाइस, ट्रांजिशनल जो आपका बेसिकली पोएट्स हैं एसोसिएटेड है जेम्स थॉमसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर एंड जॉर्ज क्रैबल, ठीक है। अभी वार पॉइंट से आपका एसोसिएशन है रूपर्ट ब्रूक, विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्रीड सेजून, एडमंड ब्लंडन एंड रॉबर्ट ग्रेव्स। एंड रिमेनिंग हमारे पास जॉर्जियन बचे हैं, देन वी हैव डब्ल्यू एच डेविस, वॉल्टर डी ला मेयर, जॉन ड्रिंक वाटर, रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। सो हियर आई हैव डिस्कस्ड ऑल दी आपके जो पॉइंट्स हैं एसोसिएटेड विद की फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the summer of 1712, The Spectator published a series of essays on the pleasures of imagination, written by. Answer we have जोसेफ एडिसन। सो गाइज मैं आपको बता दूँ, जोसेफ एडिसन द प्लेजर ऑफ द इमेजिनेशन दैट वाज रिटन 1712 और 1714, जिसमें आप देखिए द पीरियोडिकल स्पेक्टेटर जो डेली एसेज था, तो उस बेसिकल पीरियोडिकल में इसको पब्लिश कराया गया, जिसमें इन्होंने हाउ इमेजिनेशंस जो होती है इन्हेंस करती है ह्यूमन के प्लेजर, इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव असर्शन एंड रीजन बेस्ड ऑन गुलिवर्स ट्रैवल अर्नड जोनाथन स्विफ्ट द बैड नेम ऑफ बीइंग अ मिसैंथ्रोप एंड द रीजन वी हैव स्विफ्ट इन द नॉवल वॉज न्यूट्रल टू द इमेज ऑफ मैन। सो फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट assertion जो मेंशन है नंबर ए, गुलिवर्स ट्रैवल अर्नड जोनाथन स्विफ्ट द बैड नेम ऑफ बीइंग अ मिसैंथ्रोप। तो देखिए, अगर मैं मिसैंथ्रोप का आपको लिटरली मीनिंग की बात करूँ तो इट मीन्स यू सी वन हु डिसलाइक और डिस्ट्रक्ट ह्यूमन काइंड, इट इज़ कॉल्ड मिसैंथ्रोप, ठीक है। तो इन गुलिवर्स ट्रैवल जो स्विफ्ट था सटाराइज करते हैं ह्यूमन नेचर को, जहाँ पे वो एक्सपोज करते हैं ऑफ कोर्स प्राइड, ग्रीड एंड करप्शंस। तो आप देखेंगे कि मतलब गुलिवर ट्रैवल्स में इन्होंने जो सटाराइज किया है ह्यूमन फॉली को लेके, और स्पेशली मतलब थ्रो द याहूज एंड हाइमन्स जो हमने पीछे पढ़ा था कि स्विफ्ट को वहाँ पर क्या कंसिडर किया गया है, मिसैंथ्रोप। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ एज ए, तो इट्स अ राइट फैक्ट। इफ आई टॉक अबाउट द रीजन, स्विफ्ट इन द नॉवल वॉज न्यूट्रल टू द इमेज ऑफ मैन। तो गाइज आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो राइट बट इट्स नॉट राइट एक्सप्लेनेशन, ओके। तो ओवरऑल जो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, बोथ दी राइट इंडिविजुअल बट नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए टूवर्ड्स सेकेंड, क्योंकि स्विफ्ट जो है गुलिवर्स ट्रैवल में आपने देखा था सीम्स मिसैंथ्रोप, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स सटायरिकल ऑफ ह्यूमन फॉली, बट ही रिमेन्स न्यूट्रल यूजिंग exagerations or instruct rather than the condemn humanity personality. That's the reason कि ये जो है इसका right explanation नहीं है, otherwise individually both are absolutely right. अब इसके लिए आपको ये work study करना पड़ेगा, you easily understand. Which of the following novels has a great impact on the formal experimentation in contemporary fiction? So answer to that question, Lawrence Sterne's ट्रिस्टम शैंडी। तो मैं आपको बता दूँ, लॉरेंस टर्न का ये जो बेसिकली वर्क है, इट वॉज मीन्स नॉवल है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 9 वॉल्यूम्स। आपको इसमें 9 वॉल्यूम्स देखने मिल जाएंगे और अराउंड 1759 टू 1767 इट वॉज पब्लिश, राइट। एंड एग्जैक्टली जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि द फॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन इन कंटेम्प्रेरी फिक्शन, दिस इज द आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग बुक्स टू
of pop in a sequence of publication. So this is the मतलब chronology question है आपसे. सेट करना है आपको अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी. तो गाइज इफ आई सेट देम इन क्रोनोलॉजिकल तो आप देखेंगे एनएससी ऑन क्रिटिसिज्म इट वाज पब्लिश 1709. अलेक्जेंडर पॉप के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सभी यहाँ पर. और द रेप ऑफ द लॉक आपका 1712 में आ रहा है, बेसिकली इसका फर्स्ट वर्जन. एनएससी ऑन मैन इट वाज अराउंड 1733 और 34. एंड द डंसियार्ड 1728. सो ऑलमोस्ट आप देखेंगे द डंसियार्ड जो है नॉट एनएससी ऑन मैन दिस वॉज एनी हाउ केम लास्ट. ओके, तो लास्ट में आपका एनएससी ऑन मेन आ रहा है नंबर 4. And number 3 we have the Dunciad, and number 1 we have an essay on criticism, and number 2 we have the rape of Locke. So we have done the chronology here. Accordingly you have to prepare. Abhi next question, who famously said 3 or 4 families in a country village is the very thing to work on? So basically answer to this question Jane Austen. So guys मैं आपको बता दूँ 3 or 4 families in a country village is a very thing to work on is from Jane Austen. Okay, that is observational remark था about rural life of Jane Austen जिसमें उन्होंने from her letters to early novels draft कहीं ना कहीं associated है. और यहाँ पर जो है ना जैन ऑस्टन अपना इंटरेस्ट दिखा रही है इन सोशल सेटिंग्स एंड फैमिली इंट्रैक्शंस में even in a small village. Hope you understand here. Abhi next question number 20 we have, see the the enlightenment believed in the universal authority of. So guys I mentioned before that जो enlightenment है उनका belief कहीं ना कहीं reason को लेकर होता है, like they give importance or emphasize towards reason and radical thoughts. तो आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा रीजन, क्योंकि ह्यूमन रीजन जो होता है इज द अल्टीमेट गाइड होता है टू नॉलेज एंड मोरालिटी एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी के लिए, राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब टाइटल ऑफ विलियम गोल्डविन्स कैलेब विलियम्स इज. सब टाइटल से क्वेश्चन है. सो बेसिकली फ्रेंड्स जो आपके विलियम गोल्डविन है इनका जो कैलेब विलियम्स है इसका जो फ्रेंड सब टाइटल है आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी थिंग्स एज दे आर. और ये मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल एंड गोथिक फिक्शन है, राइट, जहां पर इन्होंने अब्यूज किया है ऑफ पावर, सोशल इनजस्टिस एंड टायरनी को. होप यू अंडरस्टैंड हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 22 वी हैव वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इज रिटन बाय. सो गाइज आंसर वी हैव अलेक्जेंडर पॉप, राइट. सो बेसिकली इनका ये पोयम है जिसमें इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है जोनाथन स्विफ्ट को, जहाँ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके विट, उनके इंटेलेक्चुअल as well literary genius को. Hope you understand here. अभी next question we have the author of the pamphlets short view of immortality and profaneness of the English stage 1698 was. तो अभी पीछे भी क्वेश्चन इसको लेकर आपसे पूछा गया था. Now again the question you see, now the answer to this question Jeremy Collier. Okay, now the next question, 18th century writers used satire frequently for. सो आंसर टू दैट क्वेश्चन अटैकिंग ह्यूमन वाइज एंड फोलीज. तो जितने भी 18th सेंचुरी राइटर्स थे और जो उनका देयर यूजेस था सटायर को लेके, दे क्रिटिसाइज सोशल वाइज, जिसमें वो हाइपोक्रेसी, करप्शन एंड मोरल डिके को सोसाइटी की एक्सप्लोर करते थे. फॉर एग्जाम्पल आप स्विफ्ट का अमोडेस प्रपोजल देखेंगे, अलेक्जेंडर पॉप का द डंसियार्ड हो गया, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट. ओके, एंड पॉलिटिकल सिमेंट्री भी आपको देखने मिलेगा. सो ओवरऑल द आंसर ऑप्शन नंबर ए. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज इट रोमांस, बिल्डिंग्स रोमन, कॉमिक फिक्शन और इट्स गॉथिक फिक्शन. सो आंसर वी हैव इट्स गॉथिक फिक्शन. Now the 26th question, in the rape of Locke, Belinda's lap dog is named. जो बेलिंडा का लैप डॉग था उसका नेम क्या था? आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी शॉक. तो आपने देखा द रेप ऑफ द लॉक, मैं कई बार आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोल चुकी हूँ जहाँ मैं आपको मेजर वर्क डिस्कस करती हूँ मेजर फैक्ट्स के साथ, कि आपने द रेप ऑफ द लॉक इसको प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है. सी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू एग्जैक्टली आंसर यू हैव टू इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ योर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सी, टॉम पेन्स द राइट्स ऑफ मैन वॉज पब्लिश्ड इन. बेसिकली ये जो वर्क है थॉमस पेन का द राइट्स ऑफ मैन, इट वॉज रिटन ड्यूरिंग 1791 टू 1792 इन 2 पार्ट्स में इट वॉज रिटन. पॉलिटिकल ट्रैक्ट है इनका, यानी कि पैम्फलेट है, ऐसे है. तो ऑब्वियसली वी गोज टूवर्ड्स द 1792.
ओके अभी लेट्स डिस्कस अबाउट 2010 दिसंबर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं फ्रॉम द न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन एज वी आर डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो. तो क्वेश्चन वी हैव which of his voyage Gulliver's discovered mountain like beings. So answer we have option number second, the land of the Brobdingnagians. तो आपने देखा जो गुलिवर ट्रेवल्स है, दिस इज ऑल्सो जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है, दैट वाज आई थिंक 1726 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. इट अपीयर्ड मेनी टाइम इन एग्जामिनेशन, इनफैक्ट रिपीटेड. सो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. ओके अभी नेक्स्ट वी हैव 29, द ऑगस्टन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज. अभी आपको एज रिगार्ड ऑगस्टन एज आपको ऑप्शन में से चूज करना है, राइट. सो फ्रेंड्स द आंसर टू दैट क्वेश्चन जो बेसिकली द ऑगस्टन एज इज कॉल्ड बिकॉज, तो आप यहाँ पे देखेंगे द इंग्लिश राइटर्स इमिटेट कर रहे हैं द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. अभी वाई दे इमिटेट, तो देखिए ऑगस्टन राइटर्स जो हैं एडमायर्ड करते हैं ऑर्डर को, हार्मनी एंड ऑफ कोर्स रीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं ऑफ क्लासिकल रोमन लिटरेचर की, राइट. दैट्स वाई दे इमिटेट लाइक हॉरेस, जुवेनल, वर्जिल, ओविड, सो एंड सो फोर्थ. तो ऑगस्टन राइटर्स जो हैं कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहे हैं रोमन ऑथर्स को, जैसे हॉरेस हो गए आपके, अभी मैंने आपको डिस्कस किए, एंड ऑफ कोर्स एम्फेसाइज कर रहे हैं रीजन, ऑर्डर एंड एलिगेंस को, राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरेमी कॉलियर अ शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टैलिटी एंड प्रॉफनेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज अटैक अमंग अदर्स. तो देखिए आई थिंक दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड और repeated 2 times in different format as we discussed in today's class. So this is the third time when I discuss this particular writer's absolutely same question. This is the third time, okay. So overall it's important, and the answer to this question option number C, William Congreve, okay. Abhi next question, which among the following works by Daniel Defoe landed him in prison and the pillory. आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी, द शॉर्टेस्ट वे विद डेजिटर्स. ठीक है, ये इनका 1702 में पब्लिश हो रहा है और ये एक सटायरिकल पैम्फलेट है जहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है हाई चर्च स्टोरीज को. ठीक है, और इसको आयरनिक प्रेस में लिखा गया, एक्सट्रीम मेजर्स दिया है अगेंस्ट डिसेंटर्स, राइट. सो दिस इज हाउ द आंसर, और दैट्स वाई ही पनिश इम्प्रिजनमेंट एंड टाइम इन द पिलोरे. ओके. Question number 32. Whom does Alexander Pope satirize in the portrait of Sporus? Answer we have option number D, Lord Harvey. अभी next question, जून 2010 में जो आपसे क्वेश्चन पुट हुए हैं, the religious movement Methodism in the 18th century England was founded by. Answer we have John Wesley. John Wesley, option number D. Now the next question, who among the following wrote a book with the title The Age of Reason? Answer we have Thomas Paine, right. And basically it was written in 3 parts or during 1794 to 1795. ठीक है, during this period 3 parts में ये publish हुआ है The Age of Reason, right. Next question 35. Johnson's Dictionary of the English Language was published in the year. Answer we have option number B, 1755. Okay. Abhi next we have the Restoration comedy has been criticized mainly for its. Option number C, indecency and permissiveness. Okay. Next question, the epithet a comic epic in prose is best applied to. Answer we have Fielding's Tom Jones. तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूँ, जो एक एपिथेट है इट्स एन एडजेक्टिव, और इसको डिस्क्रिप्टिव फ्रेज भी आप बोल सकते हो, जहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, और दिस इज द एग्जाम्पल आई हैव डिस्कस जो आपसे क्वेश्चन पूछा है. अभी नेक्स्ट वी हैव पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक वॉज पब्लिश्ड इन 1712. तो 1712 में तो पब्लिश हुआ था, एंड देन आफ्टर इसका रिवाइज्ड वर्जन 1702 में आया था. नाउ दे आस्क्ड कितना कैंटोज आपका जो फर्स्ट इसका पब्लिकेशन था 1712 में इट केम. ओके, सो आंसर वी हैव 2 कैंटोज. दिस इज द ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो 1712 वर्जन था उसमें आप देखेंगे वो एक शॉर्ट पोएम था जिसमें 2 कैंटोज थे, एंड जो 1714 में इसका सेकेंड और एक्सपेंडेड वर्जन आता है उसमें 5 कैंटोज थे. ठीक है, तो 5 कैंटोज आपको मिल जाएंगे बेसिकली जो एक्सपेंडेड वर्जन है. सो दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड.
Question number 39. What is the correct chronological sequence of the following? So answer we have option number C, the right. Tristram Shandy, फिर उसके बाद मॉल फ्लैंडर्स एंड पमेला, देन उसके बाद जोसेफ एंड्रयू. ईयर ऑफ पब्लिकेशन आप चेक कर लीजिएगा. दिस इज इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड लिटरेचर रेफर्स टू. जो इंग्लैंड का जो कंडीशन ऑफ इंग्लैंड है वो लिटरेचर क्या रेफर करता है? सो आंसर वी हैव option number C again, the literature of England depicting the vulnerability of labor classes. Question number 41, Dr. Johnson's The Vanity of Human Wishes express. तो क्या express यहाँ पे किया जा रहा है? Of course, sensicism, right? अभी जून 2009 में what century is variously called the age of enlightenment, the age of sensibility, the Augustan age and the age of prose and reason. So answer we have to this question option number C, 18th century, basically associated with it. And the last question of today's video, Verses on the Death of Dr. Swift was written by. Now it was written by option B, Alexander the Pope. Okay, so here we have discussed complete PYQs from new classical to Augustan age. Okay, we will discuss in further videos of mine जो आपकी further ages हैं of British literature. Let's practice with me on daily basis. Stay connected NS English Academy. If you're not subscribed yet, do subscribe it and please like the video after watching. We will meet in next video. Till then, bye bye.